Hello the students of class 12 and those preparing IIT, NEET and other engineering and medical entrances. I, Abhay Kumar, going to deal with the solution to concepts of physics, part 3 of the chapter electric field and potential. First of all, in this part, I take problem 25, which is two identical pith balls, each carrying a charge Q, are suspended from a common point by two strings of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the two strings is 2 theta in equilibrium. एक ही सपोर्ट से जो है, एक कॉमन सपोर्ट से, यहाँ कॉमन सपोर्ट है, पॉइंट ओ है कॉमन पॉइंट, उससे दो स्ट्रिंग जो है इक्वल लेंथ का है, दोनों ईच लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज टेकन एज स्मॉल एल, और उससे दो पिथ बॉल जो है कनेक्टेड है और 2 थीटा पूछ रहा है इसमें कि ईच बॉल का मास क्या होगा अगर दोनों के बीच जो है दोनों चार्ज बॉल है उस पर सेम चार्ज है प्लस मान सपोज इट इज प्लस क्यू, then both pith balls will repel each other. So what will be the mass of each pith ball if the separation between if the angle between that is angular separation between two strings is 2 theta. तो ये मास निकालना है इच बॉल का, तो लेट मास ऑफ इच बॉल इज स्मॉल m. नाउ सॉल्यूशन, लेट let the mass of each ball be m, small m or capital M, anything. Now for the equilibrium of ball A or either ball A or B, we have let T be the tension in the string, produced in the string. So T cos theta is the vertical component of the tension which balances the weight of the ball, while another component, horizontal component of tension in the string, T sin theta, will be balanced by the electrostatic repulsion force between two charged pith ball with same polarity plus Q charge है, दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे को. तो टी साइन थीटा जो है वह एफ ई द्वारा बैलेंस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से. सो एंड सेपरेशन बिटवीन टू बॉल इज 2L साइन थीटा, बिकॉज इन दिस ट्रायंगल साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन OA. सी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पिथ बॉल्स AB. So sin theta is equal to AC upon OA, that is L sin theta. इसलिए therefore AC is equal to L sin theta. And in this triangle also OBC, BC will also L sin theta from the figure. So total separation between two balls in the equilibrium is R is equal to 2L sin theta. We will put this value in the Coulomb's law when we to calculate, to find the electric force between two charged pith ball. So in the equilibrium of each ball, इक्विलिब्रियम का मतलब है जहाँ पर सेपरेशन, एक खास सेपरेशन पर वो दोनों फोर्स जो है, माने दोनों बॉल जो है वहाँ पर रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा. ऑफ ईच बॉल, जैसा ए के लिए होगा जो सिचुएशन वही बी के लिए भी होगा. तो हम ए को देखते हैं. से बॉल ए, पिथ बॉल ए, वी हैव T cos theta is equal to mg, while T sin theta is equal to Fe, electric force between two
charged pith balls. This is equation 1. This is dividing 2 by 1, we get T sin theta upon T cos theta is equal to Fe upon mg. Both T will cancel out, or tan theta equals to Fe upon mg, or Fe equals to electric force between two pith ball mg tan theta, or Fe can be can be obtained by using Coulomb's law 1 by 4 pi epsilon naught प्लस मॉड ऑफ प्लस क्यू, इसका भी चार्ज बी, बॉल बी का भी सेम चार्ज है, सेम मास है, अपॉन डिस्टेंस ए बी स्क्वायर दैट इज 12 साइन थीटा स्क्वायर. 1 by 4 pi epsilon 0 can be written as 9 into 10 to power 9. Or so using Coulomb's law we can write here for Fe 1 upon, that is direct we should write 1 by 4 9 into 10 to power 9 in place of 1 by 4 pi epsilon naught multiplied by mod of q, that is q square upon this distance is 2l sin theta ab, 2l sin theta square equals to mg. We have to find out m, mass of the ball, mg tan theta, or m equals to we should write here 1 by 4 pi epsilon naught, because answer is given in terms of 1 by 4 pi epsilon naught. The value of theta, length, etc. are not given, so we should write here m equals to, therefore m equals to q square upon 4 pi epsilon naught 4 l square sin square theta multiplied by g into tan theta. 1 by tan theta is equal to cot theta, that is q square upon 4 into 4, that is 16 pi epsilon naught l square g sin square theta and tan theta, 1 by tan theta is equal to cot theta, that is cot theta we can write in the numerator. This is mass of the ball, mass of each ball. This is the answer of this problem. Now I am going to take next problem. Now problem number 26, which is a particle having a charge 2 into 10 to power minus 4 coulomb is placed directly below and at a separation of 10 cm from the bob of a simple pendulum at rest. The mass of the bob is 100 gram. What charge should the bob be given so that the string becomes loose? स्ट्रिंग लूज हो जाए. ये स्ट्रिंग है, सपोर्ट से जो है एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है, सिंपल पेंडुलम, और उसका बॉब है ये स्ट्रिंग से लटका हुआ जो अरेंजमेंट होता है बॉब, स्ट्रिंग से जब उसको लटकाया जाता है तो उस अरेंजमेंट को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं, है ना. ए बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम ए वेटलेस एंड इलास्टिक स्ट्रिंग, it is called, this arrangement is, this system is called a simple pendulum. तो स्ट्रिंग से थी है, लटकाया हुआ है बॉब, और मान लेते हैं कि इस पर चार्ज जो है स्मॉल क्यू है. इस चार्ज को निकालना है, कैलकुलेट करना है,
और यहाँ से इसके ठीक नीचे एक पार्टिकल है, उस पर चार्ज कैपिटल Q जो दिया है 2 × 10⁻⁻, here the charge on the particle is Q is equal to 2 × 10⁻⁻4 coulomb. Charge on the particle is given, charge on the bulb is to be determined. Separation between bulb and the particle is 10 cm. अब ये जो पार्टिकल है इस पर जो चार्ज दिया है और ये इस पर बॉब पर चार्ज निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो ये चार्ज को, ये पार्टिकल का चार्ज जो है वह बॉब के चार्ज को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच में काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेट ऑफ द पार्टिकल वह काम करेगा, वेट इक्वल टू mg, वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल, जिससे पार्टिकल यहीं पर रहे और ड्रॉप नहीं हो नीचे, तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the charged particle and the bob should be equal to the weight of the bob, and the string becomes loose. For string becomes loose, so in that case tension in the string, tension which is acting in upward direction, tension produced in the string acting in upward direction, that is towards the support. So that the string becomes loose, in that case तो टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड बी जीरो। स्ट्रिंग लूज हो जाए तो उसी स्थिति में टेंशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। पूरा जब टाइट रहेगा तो टेंशन होगा, लूज हो जाएगा तो टेंशन जीरो हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम में रहने के लिए टेंशन, स्ट्रिंग लूज हो जाए तो टेंशन जीरो हो जाएगा, और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा तो जितना वेट होगा वही उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा between the charged particle and bob should be equal to the weight. So we have given charge on the particle, say Q 2 × 10⁻⁻4 coulomb, and separation between the bob and the particle is R 10 cm, that is 0.1 meter. इसको हमने आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू मीटर, एंड मास ऑफ द बॉब m इज 100 ग्राम, दैट इज 100/1000, 100 × 10⁻³ हो जाएगा ऊपर जाकर, इट बिकम्स 10⁻³ kg, दैट इज 10⁻+2 -3, दैट इज 10⁻⁻1 kg, that is 0.1 kg. We can write here it as 0.1 kg. तो सो द कंडीशन सिंपल इक्विलिब्रियम में रेस्ट में रहेगा, पार्टिकल है, और चार्ज शुड बी गिवन, कितना चार्ज इस बॉब पर दिया जाएगा जिससे कि ये जो स्ट्रिंग है वह लूज हो जाए। तो उस केस में लेट है ना Q बी द चार्ज, small q be the charge given to the bob so that the string becomes loose, एंड नाउ फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल, जिससे कि पार्टिकल वहीं पर टिका, वहीं पर ठहरा रहे, वहाँ नीचे ड्रॉप ना हो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट, एंड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल वी हैव वेट mg equals to electric force Fe, and it is given by Coulomb's law, mg Fe equals to 9 × 10⁹. I have taken 9 × 10⁹ in place of 1/4πε0. Charge capital Q charge on the bob, mod हो गया Q, इसका जो mod है 2 × Q is
charge on the particle is 2 into 10 to the power minus 4 and separation is 0.1 meter. Separation between the particle and the bob 0.1 meter square. Or we have to calculate a small g, a small q, charge on the, therefore m is given, m is 10 to 0.1 mg multiplied by g. I have taken it 10, 9.8. We can take it also 9.8. For the convenience, I have taken it 10, 0.1 in 10 into 0.1 square, 0.1 square upon 9 into 10 to the power 9 multiplied by 2 into 10 to the power minus 4. That is 10 10 to the power 8 equals to 1 upon 9 into 2 18, 8 minus 4, that is 8 minus 4, और here 0.1 और 0.1 10 to power minus 2, 10 to power minus 10 to power minus 2 हो जाएगा 0.1 into 0.1 और 10 to power minus 1 यहाँ पर 0.1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 10 to power minus 3 या minus 4, ये कैंसिल हो गया दोनों मिल करके यहाँ 10 to power minus 1, 8 minus 1 that is 7, 9 into 2 18, 18 into 10 to the power 7, ऊपर जाकर हो गया ये 10 to the power minus 7. इसको डिवाइड करने के बाद 0.055 into 10 to the power minus 7 कूलम. इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 5.5 into 10 to the power minus 9 coulomb. This is the answer of this problem. Charge on the bob, charge on the bob. This is the answer, 5.5 into 10 to the power minus 9 coulomb. Now I am going to take the next problem, which is now problem 27, which is two particles A and B having charges a small q plus a small q and plus 2q respectively are placed on a smooth table with a separation d. A third particle C is to be clamped on the table in such a way that the particles A and B remain at rest on the table under electric forces. What should be the charge on C? Where should it be clamped? दो पार्टिकल है जो कि D सेपरेशन पर है. एक पार्टिकल मान लेते हैं A है जिसका चार्ज प्लस Q है और दूसरा पार्टिकल B उसका चार्ज प्लस 2Q है. सेपरेशन D है तो तीसरा चार्ज को स्मूथ टेबल पर कहाँ क्लैंप किया जाए जिसके कारण जो है दोनों पार्टिकल A और B जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे टेबल पर, सो डैट A एंड B रिमेन इक्विलिब्रियम मीन्स रेस्ट में रहे अंडर इलेक्ट्रिक फोर्सेस. क्योंकि प्लस Q चार्ज के कारण इस पर फोर्स काम करेगा, रिपल्सन फोर्स, और फिर प्लस 2Q के कारण भी इस पर फोर्स काम करेगा. तो दोनों पार्टिकल प्लस Q एंड प्लस 2Q को जो B पर है उसको रेस्ट में रहने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होगा इसके द्वारा जो प्लस Q पर होगा वह दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन तो अपोजिट होगा. प्लस Q को रिपेल करेगा, प्लस 2Q भी प्लस Q को रिपेल करेगा. डायरेक्शन अपोजिट और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. तो मान लेते हैं कि सपोज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल C इज एट डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम चार्ज प्लस Q विच इज केप्ट एट पॉइंट A. तो इसका सॉल्यूशन में अब
स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू मान लेते हैं, इसका चार्ज जो है स्मॉल पार्टिकल, लेट कैपिटल क्यू बी द चार्ज ऑन द पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल C, थर्ड पार्टिकल C, और इससे दोनों पार्टिकल A और B इक्विलिब्रियम में होगा। तो फॉर द पार्टिकल्स A and B remain at rest, we have, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा प्लस क्यू और क्यू के बीच में, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा बी और सी के बीच में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ वी कैन ऑब्टेन फोर्स बिटवीन टू, ये टू पार्टिकल्स प्लस क्यू एंड प्लस क्यू एंड टू क्यू। सो वी हैव यूजिंग कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थर्ड पार्टिकल C फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू केप्ट एट A, वहाँ से x डिस्टेंस पर रखे हैं उसको, होगा प्लस क्यू मॉड ऑफ प्लस क्यू, Q इंटू क्यू कैपिटल Q, सेपरेशन x हो गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच में फोर्स हो गया तो प्लस क्यू और प्लस क्यू और कैपिटल क्यू जो सी पार्टिकल पर जो थर्ड पार्टिकल चार्ज है उसके बीच फोर्स, और अब प्लस 2q और इसके बीच में जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो उसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू मल्टीप्लाइड बाई q अपॉन d माइनस एक्स, दिस डिस्टेंस इज BC इज d माइनस एक्स बिकॉज AC इज x, ये डिस्टेंस x लिए हैं थर्ड पार्टिकल का प्लस क्यू चार्ज से, तो d माइनस एक्स होगा, d माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल कैंसिल आउट एंड q कैपिटल Q both will cancel out, और we have left with 2x square equals to d minus x square, और d minus x equals to रूट अंडर 2x, स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर तो रूट अंडर 2x, और x d इक्वल्स टू रूट अंडर 2x प्लस x कॉमन कर लें तो x रूट 2 प्लस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू d अपॉन रूट 2 प्लस 1। If we multiply numerator and denominator by root 2 minus 1, its conjugate, then we will get root 2 minus plus 1 into root 2 minus 1, d root 2 plus 1 into root 2 minus 1 upon root 2 minus 1, that is रूट 2 स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो वी लेफ्ट विथ d रूट अंडर 2 माइनस 1, देयरफॉर d इज इक्वल टू x अपॉन रूट 2 माइनस 1, दिस इज आंसर। This is the x is equal to, x is equal to, we have x is equal to root 2 minus 1 into d. This is answer.
दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टिकल सी फ्रॉम चार्ज क्यू। तो वन पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट का आंसर के लिए ए और बी, ये ए और बी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए आइदर किसी चार्ज पर जो है प्लस क्यू पर, इसके कारण प्लस कैपिटल क्यू के कारण, या फिर इसी पर 2q के कारण जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट जो है जीरो होना चाहिए। मतलब एफ ए सी प्लस एफ ए बी इजकल टू जीरो। तब आपका जो है सेकेंड पार्ट का इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट शुड बी द चार्ज, चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा। द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज आइदर प्लस क्यू और प्लस 2q will be 0. That resultant force acting on any charge, that is plus q due to plus q, and plus 2q will be 0. Okay. The system if the resultant force of any charge, if the that is F AC mod plus F AB, किसी चार्ज पर प्लस क्यू पर चाहे प्लस 2q पर, बाकी दोनों चार्ज सी पर जो प्लस क्यू चार्ज है और बी पर जो प्लस 2q चार्ज है उसके कारण रिजल्टेंट जीरो हो, दैट इज एफ ए सी प्लस एफ ए बी मॉड इजकल टू जीरो, और एफ ए सी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलम नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए और सी के बीच में फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू मॉड प्लस क्यू मॉड दैट इज क्यू, and AC is x, this distance is x, the value of x is we have already calculated equals to माइनस, ये उधर जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस, अब एफ ए बी, ए और बी के बीच में जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलम नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू 2q अपॉन दिस डिस्टेंस इज डी, स्मॉल डी स्क्वायर 1/4 pi epsilon naught and 1/4 cancel out, and or we have q this also cancel out. x का वैल्यू हम पुट कर दें √2 - 1 इंटू डी, 1/√2 - 1 इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू -2 अपॉन डी स्क्वायर, डी का वैल्यू रहने दें यहाँ, एयर 2q, सॉरी एयर 2q स्मॉल q, 1q will cancel out, we will left with capital Q here, और कैपिटल Q और यहाँ 2q, और कैपिटल Q का वैल्यू निकालना है Q अपॉन √2 - 1 होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, इसको अलग कर दिए दोनों टर्म को, -2q डी स्क्वायर कैंसिल आउट, और कैपिटल Q इजकल टू -2q √2 - 1 स्क्वायर, we can write here, we can use a minus b का होल स्क्वायर √2 स्क्वायर that is 2 - 2ab that is 2√2 + 1, और कैपिटल Q इजकल टू -2
2 + 1 3, 2q, 3 - 2√2, 3 - 2, 3 × 2 -6, -2 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हैं, तो q -6q माइनस माइनस प्लस 4√2. This is the charge on the third particle, minus 4√2. Sorry. Answer. This is the charge on the third particle, capital Q. This is the answer. 6 4√2 Q. Now I am going to take next problem. Now problem number 29. A particle A having a charge of 2 × 10⁻⁻6 coulomb is held fixed on a horizontal table. A second charged particle of mass 80 gram stays in equilibrium on the table at a distance of 10 cm from the first charge. The coefficient of friction between the table and the second particle is mu is equal to 0.2. Find the range within which the charge of this second particle may lie. यहाँ एक टेबल है, ओरिजेंटल टेबल, दो पार्टिकल है, ए का चार्ज दिया है, तो ए पार्टिकल यहाँ सपोज किए हैं लेफ्ट में, इसका चार्ज 2 × 10⁻⁻6 कूलम है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल बी है राइट साइड में, टेबल के राइट साइड में, जिसका चार्ज जिस पर चार्ज जो है, जिसका चार्ज का रेंज निकालना है. इस पर चार्ज मालूम नहीं है, तो इसका चार्ज हम क्यू भी मालूम नहीं है, उसी का रेंज निकालना है. इसका वेट काम करेगा, पार्टिकल बी का वह काम करेगा डाउनवर्ड, तो W = mg, m इज 80 ग्राम, विच इज 8 × 10⁻² kg, 80 × 10⁻³ kg, that is 8 × 10⁻² kg, and this is balanced by the weight of the particle B is balanced by the normal reaction of the table, which is n, or friction force acting between the table is the table and between table and the particle B is F is equal to mu r, mu n, or n is balanced by mg, n is equal to mb, mass of the particle B into g acceleration due to gravity, और mb का वैल्यू जो है 8 × 10⁻² है के जी में. तो कह रहा है अच्छा ए पार्टिकल पर भी प्लस क्यू चार्ज है, तो ये जो है ये इसको अगर पॉजिटिव चार्ज है रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो दोनों इक्विलिब्रियम में रहे, पार्टिकल बी जो है वहीं रहे. इसका मतलब है कि जितना इस पर जो है फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा लेफ्ट साइड में, तो और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है चार्ज ए के कारण, पार्टिकल ए के कारण इस पर जो चार्ज बी है, क्यू बी है, उसके बीच में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों को जो है दोनों इक्वल होना चाहिए उस सिचुएशन में, तब जाके पार्टिकल बी जो है रेस्ट में होगा वहाँ. तो रेंज ऑफ द चार्ज, लेट क्यू बी विद द चार्ज ऑन द पार्टिकल बी. तो फॉर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स रेस्ट में, पार्टिकल बी रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल बी, we have electric force acting between particle B due to particle A, that is Fe, that is Fe is equal to mu into n, Fe is equal to mu, n is the normal reaction, or Fe is given by Coulomb's law, 9 × 10⁹ multiplied by charge on particle A is 2 × 10⁻⁻6, एंड चार्ज का रेंज निकालना है पार्टिकल बी पर, जो सेकेंड पार्टिकल है, तो क्यू बी यहाँ कर देंगे, एंड डिस्टेंस रखेंगे क्यू बी, और डिस्टेंस जो है दोनों के बीच सेपरेशन आर इज 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर, 0.1² इक्वल्स टू
फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन इज इक्वल टू एम जी, एम मास ऑफ द पार्टिकल बी इज 80 ग्राम, that is 8 into 10 to the power minus 2 g, small g taken here 9.8 हमने और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Therefore mu is also given, mu is 0.2. Therefore और 9 into 2 18, 10 to power 8 minus 10 to power minus 2, that is 10 to power minus plus 6 into QB 0.1 square, that is 10 to power minus 2, so minus 4 कैंसिल होकर minus 2 हो गया, equals to 1.6, 0.8 into 0.2, that is 1.6. और QB इज इक्वल टू, दैट इज चार्ज ऑन पार्टिकल बी, पी पार्टिकल पर जो चार्ज है हो जाएगा 1.6 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power plus 6, that is 16 upon 18 multiplied by 10 to the power minus 1 or minus 6, that is 10 to the power minus 7. पावर ऐड होकर के दोनों निगेटिव पावर, और ये हो गया, चलो से कट गया 4/9 कैंसिल होकर 2 से 4/9 9 into 2, 1.6 upon 18. This 8/9 into 10 to power minus 7, 8 into 10 to the power minus 7 कूलॉम, दैट इज 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करने पर 8 पॉइंट, इट कैन बी रिटन एज 8.88 into 10 to the power minus 7 कूलॉम. और रेंज ऑफ चार्ज है इसलिए देयरफॉर रेंज ऑफ चार्ज on particle B, on the particle B is QB, रेंज लेने पर प्लस माइनस चार्ज दोनों पर 8.88 into 10 to the power minus 7 कूलॉम. That is answer of this problem. Now problem 30. A particle capital A having a charge of 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and a mass 100 gram is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 degree. Where should another particle B having same charge and same mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium? पार्टिकल बी का कितना मास होगा जिससे कि यह इंक्लाइन पर रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये निकालना है. जबकि एक दूसरा पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल ए है जो कि इंक्लाइन प्लेन है, ये जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है, झुका हुआ है. तो इस पर जो है वेट काम करेगा डाउनवर्ड, और वेट का एक कंपोनेंट जो है ये mg sin 30 नीचे की ओर काम करेगा, जो कि इसको नीचे की ओर लाने का टेंड करेगा.
और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा इंक्लाइन का, वह इसका वेट का एक वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, नॉर्मल कंपोनेंट इधर एम जी कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और ये चार्ज है से इस पर चार्ज है ए पर, दोनों पर सेम चार्ज है, दूसरा चार्ज पार्टिकल बी है, सेपरेशन आर है, तो आर निकालना है, कितना सेपरेशन होगा दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच, वी हैव टू कैलकुलेट इट द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। तो ये ए पार्टिकल जो होगा, अब बी को यहीं पर रेस्ट में रहने के लिए, ये नीचे ना आए, यहीं पर रहे, उसी पोजीशन पर रहे रेस्ट में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस पर चार्ज पार्टिकल ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और एम जी साइन 30 इस पर जो है डाउनवर्ड फोर्स है, पार्टिकल ए पर काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको इंक्लाइन के अलोंग ये स्लाइड करने का प्रयास करेगा। तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा, माने ये जो फोर्स होगा ये एम जी साइन 30 ये इसको जो है बैलेंस करे, माने इसको यहाँ रेस्ट में रखेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रेस्ट में रखेगा पार्टिकल बी को, ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो फॉर, और इस पर जो फोर्स बचा है पार्टिकल ए पर एम जी साइन 30, तो फॉर द इक्विलिब्रियम means rest of the charged particle B on the incline, we have mg sin 30 downward force equals to mg sin 30, इधर भी काम करेगा, इस पर भी यहीं आप कंसिडर कर लीजिए, mg sin 30, इस पार्टिकल का भी वही सिचुएशन है, यहाँ नीचे की ओर आ रहा है, ये नीचे की ओर इसको स्लाइड कराने का प्रयास करेगा और फ्रिक्शन थी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको वहाँ रोकेगा। तो ये दोनों, इसका वेट काम करेगा नीचे डाउनवर्ड वेट mg, और mg cos 30, mg cos 30, ये भी 30 हो जाएगा फ्रॉम द ज्योमेट्री, और ये नॉर्मल रिएक्शन है, it will balance by the normal reaction of the incline. mg cos 30 will balance by the normal reaction and of the incline. Sorry. तो ये B को वहीं रेस्ट में रहने के लिए इस पर जो डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, तो N इज बैलेंस्ड बाई, N बैलेंसेस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट mg cos 30, तो इस पर केवल mg sin 30 फोर्स रहेगा जो इसको नीचे की ओर स्लाइड करने का, पार्टिकल B को नीचे की ओर इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करने का ट्राई करेगा, और इसको यहाँ रोकेगा, यहीं पर रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स A के कारण जो होगा, चार्ज पार्टिकल A के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स उसको वहीं पर रोकने का प्रयास करेगा, जिससे कि पार्टिकल B जो है वहीं पर इक्विलिब्रियम में होगा, रेस्ट में रहेगा। तो Fe इक्वल टू mg sin 30 इज बैलेंस्ड बाई Fe, mg sin 30 इक्वल टू Fe, और mg दैट इज मास ऑफ पार्टिकल B है, m इक्वल टू ma इक्वल टू mb इक्वल टू m, एंड और mg sin 30 F is given by Coulomb's law, electric force acting on the charged particle B due to charged particle A is 9 into 10 to power 9, QA QV दोनों है QA QV दोनों पर सेम चार्ज है, 2 into 10 to power minus 6 into 2 into 10 to power minus 6 अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर, r ही आपको निकालना है दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन, और m इज 0.1, और r स्क्वायर वी कैन एलिमिनेट इट, r स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, 9 into 10 to power 9 into 4 into 10 to the power minus 12 अपॉन m
mg sin 30, sin 30 m is 100 ग्राम, that is 0.1, और g को भी नीचे ले आएंगे, r को ऊपर ले गए, mg sin 30 को नीचे, m इजकल टू 1 इंटू 0.1, g इजकल टू 10, 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, हमने 10 लिया इसको यहाँ, और sin 30 हाफ, ये 5 हो गया, और -1 पावर है यहाँ -11 हो जाएगा, -12 के एक पावर से कैंसिल हो गया इसका एक पावर, ये हो गया 9 इंटू 4 36 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 -2 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 mg 36 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 5, that is 0. and 10 to the power plus 9 minus 11, 10 to the power -2. Therefore r is equal to root under 36 upon 5 into 10 to the power -2. 36 6 हो गया ये, अपॉन रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6 अपॉन रूट 5 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर रूट 10 टू पावर -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 10 टू पावर -1, 6 अपॉन रूट 5 2.23 इंटू 10 टू द पावर -1, दैट इज 600 अपॉन 2223 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर, ये मीटर है, और ये हो जाएगा डिवाइड करने पर 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1 मीटर मीन्स 0.27 मीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा 27 सेंटीमीटर आंसर। दिस पार्टिकल, द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल B is 27 meter from particle A. From particle A means A, from particle A which is placed at the bottom. This is the answer of this problem 27 cm. तो आज का ये पार्ट जो है समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, तो आज यहीं तक इस पार्ट में। अब अगले पार्ट में हम लोग कूलॉम फ्लो का प्रॉब्लम लगभग हो गया है, एक आध प्रॉब्लम और देखेंगे इसमें, ऐसी बार में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉब्लम डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।